السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ سابقہ کلاس میں ہم نے اظہار نون ساکن اور تنوین کو پڑھا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ادغام نون ساکن اور تنوین کا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم یہ جانیں گے کہ ادغام کسے کہتے ہیں اور قرآن مجید میں ادغام کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ سبوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن پر لازماً کلک کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاسز اور اپڈیٹس ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ادغام نون ساکن اور تنوین کا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں مل جانا، یعنی ایک حرف کا دوسرے حرف میں مدغم ہونا، اسی کا نام ادغام ہے۔ اور نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ادغام نون ساکن اور تنوین کا ہے، اور آج ہم جانیں گے کہ قرآن مجید کے اندر ادغام کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا قاعدہ ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں جاننے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ میں یہاں پر ادغام کا قاعدہ لکھ لیتا ہوں، آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں، اس کے بعد میں انشاءاللہ مع مثال کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو قاعدہ میں نے یہاں پر لکھا، آپ اس قاعدے پر غور کریں۔ ہم نے لکھا اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، اور تشدید ہونے کی وجہ سے زیادہ زور اگلے والے حرف پر دیا جائے گا اور اس کو گنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اب میں آسانی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور تشدید ہونے کی وجہ سے زیادہ زور جو ہے وہ اگلے والے حرف پر دیا جاتا ہے اور اس کو گنہ کے ساتھ بھی ادا کیا جاتا ہے، اور جس گنہ کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ تک کی ہونی چاہیے۔ تو اب ہم سب سے پہلے یہاں پر وہ ادغام کے حروف جاننے والے ہیں جو نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں، اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ادغام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر وہ لکھ لیتا ہوں، آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو اب ہم جانیں گے ادغام کے حروف کون سے ہیں۔ میں اس کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں۔ تو آپ ان حروف پر غور کریں۔ یہاں پہ ہم نے لکھا یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ آسانی سے ہم اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ ان کو ہم یرملون کہتے ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو ہم اگر ملا کر پڑھیں گے تو یرملون ہوتا ہے ایسے۔ تو ان کو ہم یرملون پڑھتے ہیں۔ تو آپ ان حروف پر غور کریں۔ میں نے یہاں پر جو حروف یرملون جو کہ ادغام کے حروف ہے وہ لکھ لیے۔ اب ہم ان میں یہ جانیں گے ان میں سے وہ حروف کون سے ہیں جو گنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور وہ حروف کون سے ہیں جو بغیر گنہ کے ادا ہوتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے یہاں پر گنہ والے حروف یعنی جن میں گنہ استعمال ہوتا ہے وہ حروف پہلے لکھ لیتا ہوں اور ان کی مثالوں کو آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ حروف لکھتا ہوں جو بغیر گنہ کے ادا ہوتے ہیں اور ان کی مثالوں کو بھی سمجھاؤں گا۔ تو اب آپ ان حروف پر غور کریں۔ یہاں پہ ہم نے لکھا یا، نون، میم، واو، یعنی ینمو، یعنی ہم نے 4 حروف وہ لکھے جن میں گنہ ہوتا ہے، یعنی جن کو ہم گنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ادغام کے 6 حروف ہیں، یعنی حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، لیکن ان میں سے 4 ایسے ہیں جو گنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور 2 ایسے ہیں جو بغیر گنہ کے ادا ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم ان کی مثالوں کو یہاں پہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یا کی مثال کو یہاں پر لے لیتے ہیں، اور اس مثال کو ہم سورہ کہف میں آیت نمبر 5 میں لے لیتے ہیں۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ میں نے یہاں پر لکھا ان یقولون، ان یقولون۔ تو اب آپ غور کریں،
सबसे पहले हमें जहन में ये होना चाहिए कि हमारा कायदा क्या है। हमारा कायदा है नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ इदगाम में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इदगाम होगा, यानी एक हरफ दूसरे हरफ में मिल जाएगा और तशदीद होने की वजह से ज्यादा जोर जो है वो अगले वाले हरफ पर दिया जाएगा और इसको गुन्ना के साथ भी अदा किया जाएगा, जिस गुन्ना की मिकदार 2 से 3 हरकत की होगी। अब हमें यहां पे समझना जरूरी है कि जब या मीम नून वाव जो कि गुन्ना वाले हैं, जिनको हम गुन्ना के साथ अदा करते हैं, अगर उनके ऊपर तशदीद आ जाती है तो हमें वहां पर इदगाम करना होता है। और रही लाम और रॉ की बात, उनके ऊपर अगर तशदीद आ जाएगी तो हम उनको भी इदगाम करेंगे, लेकिन इदगाम कामिल करेंगे, यानी बगैर गुन्ना के हम उनको अदा करेंगे। वहां पर इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना के साथ नहीं होगा, बल्कि इदगाम कामिल होगा। तो अब हम सबसे पहले या की मिसाल को देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पर गौर करें, यहां पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद या आ रहा है, और या जो है ये हुरूफे इदगाम में से एक हरफ है, तो यहां पर या के ऊपर तशदीद भी है। और अभी हमने कायदा क्या है, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इदगाम में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर क्या होगा, इदगाम होगा, और तशदीद होने की वजह से ज्यादा जोर अगले वाले पर दिया जाएगा। तो अब आप यहां पर देखें, नून साकिन के बाद या आया और इसके ऊपर तशदीद है, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यक़ूलूना। हम इस हमजा को जो है उस या के साथ मिला रहे हैं, हम इस अलिफ को या के साथ मिला रहे हैं, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस नून को जो है हम इसके अंदर बंद कर रहे हैं, यानी मुदगम कर रहे हैं। नून इसके अंदर जो है मिल जाता है पूरा। इदगाम कहती हैं कि एक हरफ का दूसरे हरफ में मिल जाना, तो नून जो है वो यहां पर जो है मिल जाता है। कैसे, हम पढ़ते हैं यक़ूलूना, यक़ूलूना, यक़ूलूना। हम हमजा और या की आवाज को मिलाते हैं और नून को जो है हम इनके अंदर मुदगम करते हैं, जैसे यक़ूलूना, यक़ूलूना, यक़ूलूना। तो अब हम चलते हैं तनवीन की मिसाल की तरफ, जो हमें मिलती है सूरह राद के अंदर आयत नंबर 23 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। तो आप इस आयत करीमा पर गौर करें, यहां पे हमने लिखा अदनी यदखुलूनहा। तो अब हमारा कायदा है वो नून साकिन और तनवीन का है। अब यहां पर हमने नून साकिन की बात कर ली, अब हम नीचे तनवीन की बात करेंगे कि यहां पर नून के नीचे तनवीन है, तो तनवीन के बाद या आया, और या जो है ये हुरूफ इदगाम में से एक हरफ है, और इस या के ऊपर तशदीद भी है, तो यहां पर क्या होगा, इदगाम होगा। तनवीन के बाद आया तो इदगाम होगा, यानी इस तनवीन को हम या में क्या करेंगे, मिलाएंगे, मुदगम करेंगे। कैसे, अदनी नी नी यदखुलूनहा, अदनी यदखुलूनहा, अदनी नी नी नी। हम यहाँ पे या को और इस तनवीन को आपस में क्या कर रहे हैं, मुदगम कर रहे हैं। कैसे, अदनी यदखुलूनहा, अदनी नी, ये या की आवाज हम निकाल रहे हैं, अदनी ये जो हम कर रहे हैं, यानी हम या और तनवीन को आपस में क्या कर रहे हैं, मुदगम कर रहे हैं, इदगाम कर रहे हैं। कैसे, अदनी यदखुलूनहा, अदनी यदखुलूनहा, अदनी यदखुलूनहा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मीम की मिसाल की तरफ। तो अब जो हम मीम की मिसाल को ले लेते हैं सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 130 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं। अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें, यहां पे हमने लिखा अम्मिल्लति, अम्मिल्लति। यहां पर अगर आप गौर करें, यहां पर नून साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है, और नून साकिन और तनवीन के बाद अगर या मीम नून वाव आ जाए तो इदगाम होगा, और तशदीद होने की सूरत में ज्यादा जोर जो है अगले वाले पर दिया जाएगा। तो यहां पर मीम के ऊपर तशदीद है तो ज्यादा जोर मीम पर दिया जाएगा। तो हम कैसे पढ़ते हैं, अम्मिल्लति, नून को हम
बिल्कुल भी अदा नहीं कर रहे, यानी नून कहाँ जाता है, नून इस मीम के अंदर क्या हो जाता है, मुदगम हो जाता है, यानी इसके अंदर मिल जाता है। इसी का नाम इदगाम है। कैसे? अम मिल्लति, अम मिल्लति। अगर आप ध्यान दें, ये आइन जो है इस मीम के साथ हम मिलाकर पढ़ते हैं। कैसे? अम मिल्लति। अब नून साकिन कहाँ जाता है, वो इस मीम के अंदर क्या हो जाता है, जज्ब हो जाता है, मिल जाता है। इसी का नाम इदगाम है। तो हम क्या करते हैं, अम मिल्लति, और नून साकिन के बाद मीम मुशद्दद जो है ये कुरान में हर जगह आता है। नून साकिन के बाद अगर कभी भी मीम आए तो वो बिना तजदीद के नहीं आएगा, आप पूरे कुरान में देख सकते हैं। नून साकिन के बाद अगर मीम आ जाता है वो तजदीद से खाली नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर तजदीद जरूरी और लाजमी होती ही होती है। आप कुरान के अंदर देख सकते हैं। तभी यहां पर क्या कर रहे हैं हम, अम मिल्लति इब्राहीम, अम मिल्लति, अम मिल्लति, अम मिल्लति। आइन और मीम को हम मिला रहे हैं और नून कहां जाता है, वो इसके अंदर जज्ब हो जाता है, मुदगम हो जाता है। इसी का नाम इदगाम है। तो अब हम चलते हैं इसी मीम की तनवीन की मिसाल की तरफ, जो सूरह राद के अंदर आयत नंबर 27 के अंदर है। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। हमने यहां पर लिखा आयतुम मिर रब्बिही, आयतुम मिर रब्बिही। तो अब आप यहां पर ध्यान दें, यहां पर तनवीन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इदगाम होगा, गुन्ना के साथ होगा। गुन्ना के साथ क्यों होगा, क्योंकि 4 हुरूफ जो है या मीम नून वाव, इनमें गुन्ना के साथ ही इदगाम होता है। तो यहां पर मीम है तो यहां पर क्या होगा, इदगाम होगा। तो इस तनवीन को हम इस मीम में क्या करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे, इदगाम करेंगे। कैसे? आयतुम मिर रब्बिही, आयतुम मिर रब्बिही, आयतुम, तुम। तनवीन को मीम के अंदर क्या किया, जज्ब कर लिया। आयतुम मिर रब्बिही, आयतुम मिर रब्बिही। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नून की मिसाल की तरफ। तो अब जो हमारी नून की मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह इब्राहीम में से, आयत नंबर 11 में से। तो सबसे पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। यहां पर हमने लिखा लना अन्नतियकुम। अब आप यहां पर ध्यान दें, यहां पे नून साकिन के बाद नून मुशद्दद आ रहा है, तो यहां पर इदगाम होगा, गुन्ना के साथ होगा। कैसे? लना अन्नतियकुम, अन्नतियकुम, अन्नतियकुम। अब आप यहां पर ध्यान दें, यहां पे जो नून साकिन है ये एक नून है, और नून मुशद्दद जो है ये 2 नून है, क्योंकि मुशद्दद जो होता है वो 2 के बराबर होता है, तशदीद जो होती है वो 2 के बराबर होती है। तो इस नून मुशद्दद के अंदर कितने नून है, 2 नून है। तो ये नून साकिन और ये वाले 2 नून हो गए 3 नून। लेकिन हम जब पढ़ते हैं हम सिर्फ 2 ही नून को पढ़ते हैं। कैसे? अन हो गए 1 नून, ना हो गए 2 नून, तो हम 2 को पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर 3 है। ये नून साकिन कहां जाता है, ये नून साकिन जो है इस नून मुशद्दद के अंदर जो है मुदगम हो जाता है, तो इसी का नाम जो है इदगाम है। तो अब हम देखें, लना अन्नतियकुम, लना अन्नतियकुम। तो ऐसे ही आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं वाव की मिसाल की तरफ। तो अब जो हमारी वाव की मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह राद के अंदर, आयत नंबर 11 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। यहां पे हमने लिखा मिवालिन, मिवालिन। अब आप यहां पर ध्यान दें, यहां पे नून साकिन है और इसके बाद वाव मुशद्दद वाला आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इदगाम गुन्ना के साथ होगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मिवालिन, मिवालिन। हम म्यू पढ़ रहे हैं, मीम को इस वाव के साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं, और नून साकिन जो है वो इस वाव के अंदर मुदगम हो जाता है, इस तजदीद के अंदर वो मिल जाता है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, मिवालिन। और अगर हम दूसरी जगह देखें, जैसे
जन्नातिन वउयून, ऐसे। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, जन्नातिन, त्यों त्यों त्यों, हम त्यों कर रहे हैं। इस तनवीन को हम इस वाव के साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या है, वाव जो है ये अदा हो जाता है इदगाम के साथ। तो हम कैसे पढ़ेंगे, मिन वालिन, मिन वालिन, 2 से 3 हरकत तक का गुना करना है। जन्नातिन वउयून, जन्नातिन वउयून। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये थे 4 हुरूफ जो गुन्ना के साथ अदा होते हैं। अब हम चलते हैं उन हुरूफ की तरफ जो बगैर गुन्ना के अदा होते हैं, यानी लाम और रॉ की बात कर रहा हूं कि जो बगैर गुन्ना के अदा होते हैं। अब मैं उनकी मिसालों को यहां पे लिख लेता हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लाम की मिसाल ले लेते हैं। उसको हम ले लेंगे सूरह यासीन के अंदर आयत नंबर 47 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। यहां पे हमने लिखा मल्लौ यशाउल्लाहु। तो अब आप यहां पर ध्यान रखें, यहां पे नून साकिन के बाद लाम मुशद्दद आया, तो यहां पर क्या होगा, इदगाम होगा, लेकिन बगैर गुन्ना के होगा, इदगाम कामिल होगा। नून साकिन के बाद लाम आ रहा है, तो हमें यहां पर गुन्ना नहीं करना है, बल्कि हमें सीधा यहां पे इसको अदा करना है। अगर आपने देखा हो, अभी हमने जो 4 हुरूफ या मीम नून वाव पढ़े, वो अगर नून साकिन और तनवीन के बाद आते थे तो हमें वहां पे गुन्ना के साथ इदगाम करना होता था। लेकिन यहां पर लाम जो है इसको बगैर गुन्ना के अदा करना है। अगर यहां पर हम मिसाल लें, अगर यहां पे मैं यशा होता ऐसे, तो यहां पे नून साकिन के बाद या आ जाता, तो हम इसको कैसे पढ़ते, मैं यशा, मैं यशा। तो हम यहां पर या को जो है और इसको थोड़ा सा हम खींचते, 2 से 3 हरकत तक का इसमें गुन्ना करते। लेकिन यहां पर हमें गुन्ना नहीं करना है। हमें यहां पे कैसे पढ़ना है, मल्लौ यशाउल्लाह, मल्लौ यशाउल्लाह। तो हम यहां पे मल्लौ जल्दी से अदा कर रहे हैं। हम यहां पे मल्लौ ऐसे नहीं पढ़ सकते, हम लाम को नहीं खींच सकते। लाम और रॉ जो है इस सूरत में क्या होगा, इदगाम बगैर गुन्ना के होगा, यानी इदगाम कामिल होगा। कैसे, मल्लौ यशाउल्लाह, मल्लौ यशाउल्लाह, मल्लौ, मल्लौ। मीम और लाम को मिलाएंगे, नून साकिन को नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहां पे इदगाम करना है, लेकिन बगैर गुन्ना करना है। यानी इदगाम का मतलब है एक हरफ का दूसरे हरफ में मिल जाना। तो हम इस मीम को इसके अंदर मिलाएंगे। कैसे, मल्लौ यशा, मल्लौ यशा। ये नून साकिन कहां गया, ये इसके अंदर मुदगम हो गया, इसी का नाम इदगाम है। मल्लौ यशाउल्लाह। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आखिरी मिसाल की तरफ, जो है रॉ की मिसाल। पहले मैं उसको यहां पे लिख लेता हूं। तो अब जो हमारी रॉ की मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 173 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। यहां पे हमने लिखा गफूरुर रहीमुन। अब आप यहां पर ध्यान दें, यहां पे रॉ के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद रॉ मुशद्दद आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे इदगाम होगा, लेकिन बगैर गुन्ना के होगा। कैसे, गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम। हम इसको सीधा अदा कर रहे हैं, हम इसको खींच नहीं रहे। अगर हम इसको खींचेंगे तो ये कुछ पढ़ने में ऐसा होगा, गफूरुर रहीम, तो ये हो जाएगा, यानी रॉ जो है ये अटक जाएगा, यानी जुबान हमारी ऊपर वाले तालों के साथ अटक जाएगी। तो ये पढ़ने में नहीं आएगा, बल्कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे, गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इतना याद रखें, जब नून साकिन और तनवीन के बाद या मीम नून वाव आ जाए और उनके ऊपर तशदीद हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे इदगाम होगा, गुन्ना के साथ होगा, और उस गुन्ना की मिकदार 2 से 3 हरकत की होगी। और अगर लाम और रॉ नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, इदगाम होगा, लेकिन
گنہ کے بغیر ہوگا اور وہاں پر ہمیں اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ ادغام کامل کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔